I have taken some question and already I have discussed this question another platform, but I think that question is very important. There are some literary terms और लिटरेरी टर्म्स के अलावा उसमें कुछ और भी चीजें रही हैं. दैट इज एन एक्सप्लेनेटरी नोट्स अगर देखा जाएगा उसके एंड में हुआ है. आई हैव डिस्कस्ड दैट क्वेश्चन वंस, but here I would like to go with that question again because some questions are related to literary terms. So what I taught you yesterday or before yesterday, yeah, within this week, whatever the lecture I delivered, you will come to know that some questions related to those topics you will get in this test paper, and there are some other questions also. And except it, you will come to know because I have just गिवन प्रायोरिटी टू डिस्कस लिटरेरी टर्म्स का ज्यादातर प्रायोरिटी उसी को मैंने दिया हुआ है. तो उसी तर्ज पे एक आज हम टेस्ट को जो कभी मैंने दूसरे प्लेटफॉर्म पे कराया था, बट हियर आई हैव नॉट डिस्कस. दिस इज व्हाई आई हैव टेकन दैट पेपर एंड यू विल कम टू नो कि दैट थिंग वी आर गोइंग टू discuss it again here and sharing with you PDF file, and I shared that PDF file in WhatsApp group also, sharing that PDF file. I hope कि it's visible. If Yes, it's sir. visible, let me know. Okay, okay. Yes, sir. Good evening, sir. And yeah, good evening, Om Prakash ji. Good. अमित भाई भी जुड़े हुए हैं. So I would like to explain there are some important questions which I have to discuss, and one thing I would like to tell you कि we are running this class under the banner of JS English Literary Society. It's the contact number. That's only the formality. And the important thing is what? The important thing is these questions which I have to discuss with you. Even you know it, but there are some important things which you have to go. Question number one, which of the following is mismatched? इसमें कौन सा mismatched है? You will come to know. उसका आंसर मैंने नीचे दिया हुआ है, but you have to go every word. You have to go with each line. Number one, yeah, A, father of dramatic poetry, Christopher Marlowe. Number two, king of dramatic monologue, रॉबर्ट ब्राउनिंग. जो पहला ऑप्शन है ए, मैं फिर से उसको आई वुड लाइक टू रिपीट. फादर ऑफ ड्रामेटिक पोइट्री, हु इज द फादर ऑफ ड्रामेटिक पोइट्री? क्रिस्टोफर मार्लो. किंग ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, रॉबर्ट ब्राउनिंग. फादर ऑफ इंग्लिश एसे, फ्रांसिस बेकन. फादर ऑफ एसे, मॉन्टेन. फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, जॉन वाइक्लिफ. द फर्स्ट यूज ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर को पहली बार किसने यूज किया? जो कैरेक्टर हम लोग बात करते हैं, इस कैरेक्टर का यूज पहली बार अ, एक तरह से ड्रामा में या किताब में या कैरेक्टर का यूज का परंपरा किस राइटर ने दुनिया में शुरू किया? सो देयर आर हाउ मेनी ऑप्शन? देयर आर ए बी सी डी ई एफ. अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट कि फादर ऑफ ड्रामेटिक पोइट्री क्रिस्टोफर मार्लो सही है. क्यों ये बात कही जा रही है कि फादर ऑफ ड्रामेटिक पोइट्री की बात कही जा रही है? अगर आपको याद होगा, व्हेन यू टॉक अबाउट फादर ऑफ dramatic poetry, you will come to know a dramatic poem was written by that man, that was the Hero and Leander. Hero and Leander. If you go to Hero and Leander, that is the work of whom? That is the work of Christopher Marlowe. और क्रिस्टोफर मार्लो से ही कौन सा कॉन्सेप्ट शुरू होता? फादर ऑफ ड्रामेटिक पोइट्री का. इवन फादर ऑफ ड्रामेटिक पोइट्री का ही नहीं, बल्कि क्रिस्टोफर मार्लो इसलिए भी फेमस है कि ही रोड द फर्स्ट हिस्टोरिकल नॉवेल, दैट वाज एडवर्ड सेकेंड. एंड क्रिस्टोफर मार्लो इसलिए भी फेमस है कि उन्होंने मार्लोवियन कॉन्सेप्ट या मार्लोवियन हीरो का कॉन्सेप्ट दिया. एंड द ब्लैंक वर्ड्स विच वाज यूज्ड बाय क्रिस्टोफर मार्लो, that was what that is known as mighty lines. And mighty line, the title was given by whom? Mighty line, the title was given by, you will come to know, it was given by him, it was given by बेन जॉनसन. तो क्रिस्टोफर मार्लो से रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे वो सब मैंने आपको बता दिया कि फादर ऑफ ड्रामेटिक पोइट्री क्रिस्टोफर मार्लो. फर्स्ट राइटर हु रोट हिस्टोरिकल प्ले एडवर्ड सेकेंड, वो भी क्रिस्टोफर मार्लो है. एंड यू विल कम टू नो कि ब्लैंक वर्स वाज यूज्ड
by this man in his play, but that blank verse has been addressed as Mighty Lines by Ben Jonson. So you find these things. नेक्स्ट पॉइंट व्हेन यू गो विथ की फादर ऑफ ड्रामेटिक पोइट्री, तो ये ऑप्शन सही है मार्लो का. एंड यू फाइंड किंग ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग रॉबर्ट ब्राउनिंग. yesterday I discussed about dramatic monologue in GIC mails, and you will come to, I just told ki in what situation, under what situation this particular dramatic monologue came, and you will come to know ki why Robert Browning is known as father of dramatic monologue. You will come to know कि dramatic monologue became a popular form of poetry, a popular form of poem in Victorian age, and it was done by whom? It was done by Robert Browning. Robert Browning wrote My Last Duchess, Prospike, and you will come to know that was The Last Ride Together, Rabbi bin Ezra, and so many things that has been written by this man. तो ये भी क्वेश्चन है कि किंग ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग रॉबर्ट ब्राउनिंग. नेक्स्ट ऑप्शन जो सी है, फादर ऑफ इंग्लिश एसे फ्रांसिस बेकन. We know it very well कि Bacon has written 58 essays which published in 1597, 1612 and 1625. So father of English essay Francis Bacon, देयर इज नो एग्जैजरेशन. और जो फ्रांसिस बेकन थे उनको द वाइसेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड कहा गया. किसके द्वारा? अलेक्जेंडर पोप के द्वारा. इवन बेकन कॉल्ड हिज एसेज डिस्पर्स्ड मेडिटेशन, प्रैक्टिकल विजडम, एपिग्रामेटिक स्टाइल और फॉर्मल एसेइस्ट. इसके अलावा उनके एसेज आर्टिकल की भी कैटेगरी में. एंड ही बिहेव्स लाइक अ टीचर with this with reader. So these things you find, these are the basic characteristics of Bacon. तो ये तो आप रट लेंगे, बट उसके साथ मैं कुछ अलग भी आपसे बातें कर ले रहा हूँ. फादर ऑफ एसे मॉन्टेन. मॉन्टेन कहाँ के हैं? फ्रेंच एसेइस्ट, उनको फादर ऑफ एसे कहा जाता है. एंड फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज जॉन वाइकली, बिकॉज जॉन वाइकली ट्रांसलेटेड द बाइबल फ्रॉम लैटिन इनटू इंग्लिश इन 1382 फॉर द फर्स्ट टाइम. दिस इज व्हाई ही इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज. द फर्स्ट यूज ऑफ कैरेक्टर अरिस्टोटल, ये ऑप्शन गलत है. बल्कि दुनिया का पहला जो राइटर थे जिनका नाम थियोफ्रेस्टस था, थियोफ्रेस्टस द फर्स्ट राइटर ऑफ द वर्ल्ड, अ ग्रीक था. ही ब्रॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ कैरेक्टर, ही ब्रॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ कैरेक्टर. तो जो कैरेक्टर है कि कोई स्टोरी होगा, कोई नॉवेल होगा या कोई पोयम होगा जो नैरेटिव फॉर्म में होगा, उसमें कैरेक्टर का जो कॉन्सेप्ट लाया गया है, ये किसके द्वारा लाया गया है? थियोफ्रेस्टस के द्वारा लाया गया है. और थियोफ्रेस्टस कौन है? थियोफ्रेस्टस आपकी, यू विल कम टू नो, अ ग्रीक ऑथर, वाज फर्स्ट मैन हु यूज्ड द फर्स्ट कैरेक्टर. ये पहले थियोफ्रेस्टस, अ ग्रीक ऑथर, was the first man who used the first character. Aristotle gave the concept of tragedy in poetics. Aristotle का जो concept of tragedy है उन्होंने किस किताब में दिया? पोएटिक्स में दिया. फॉर कैरेक्टर अरिस्टोटल यूज्ड द टर्म इथॉस. हमें ध्यान में रखना है कि अरिस्टोटल ने कैरेक्टर के लिए जो वर्ड यूज किया है वो क्या है? इथॉस है. एंड फॉर प्लॉट माइथॉस, और उन्होंने प्लॉट के लिए जो शब्द यूज किया वो कौन सा है? माइथॉस है. He also gave the concept of tragic hero, hamartia, hubris, catharsis, anagnorisis, and three unities. He emphasized upon unity of action among three unities. तो ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अरिस्टोटल ने कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी जो दिया है उन्होंने अपनी किताब पोएटिक्स में दिया. और उस कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी में कैरेक्टर के लिए उन्होंने कौन सा वर्ड यूज किया? एथॉस वर्ड यूज किया. प्लॉट के लिए कौन सा वर्ड यूज किया? माइथॉस वर्ड यूज किया. और भी उनके अपने कॉन्सेप्ट है. ट्रेजिक हीरो का कॉन्सेप्ट, ट्रेजिक हीरो में क्या है कि हीरो नीदर शुड बी एब्सोल्युटली गुड नॉर एब्सोल्युटली बैड, but the mingling of bad and good elements. मतलब he should neither be absolutely what, neither be Satan nor angel, बल्कि दोनों के बीच का हो. हेमार्सिया जो है ये ग्रीक टर्म है जिसका मतलब होता है कि ट्रेजिक फ्ला. हेमार्सिया मीन्स ट्रेजिक फ्ला. ह्यूब्रिस जो है एक तरह से देखा जाए कि हेमार्सिया का एक टाइप ही हम उसको कहेंगे, उसका होता है. और ह्यूब्रिस में क्या होता है? डिसोबेइंग ऑफ डिवाइन वार्निंग. कैथारसिस क्या है? परगेशन और प्यूरिफिकेशन है. एनाग्नोरिसिस क्या है? रिवर्स, आई थिंक एनाग्नोरिसिस, इफ आई डोंट मिस इट, दैट इज द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, एनाग्नोरिसिस. and you will come to know the same thing. We find the what? We find the peripetia.
Peripety also sudden change and reversal of hardship. These are the two words related to anagnorisis and peripetia. थ्री यूनिटीज, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन. लेकिन उसमें भी अरिस्टोटल ने सबसे ज्यादा किस पर जोर दिया? यूनिटी ऑफ एक्शन पर. इफ द क्वेश्चन कम्स कि ये अमंग थ्री यूनिटीज अरिस्टोटल emphasized upon, तो अरिस्टोटल emphasized upon यूनिटी ऑफ एक्शन. नाउ लेट मी नो, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? Amit bhai has raised his hand. I just want to know कि have you any confusion? या किसी को? Should I go ahead? Yes, sir. Okay. Now you are getting question number 2. Who gave the spot time theory? Spot time theory, I know it very well कि it's associated with the poetry of William Wordsworth. Spot time theory. So spot time theory has been given by whom? Spot time theory has been given by William Wordsworth. And here I have explained कि in preface to lyrical ballad he gave the concept the spot time theory, which refers that the poetry goes under four classes. इन्होंने बताया था कि पोइट्री जो है क्रिएशन से पहले फोर क्लासेस में जाती है. ये बात किसने कहा हुआ था? विलियम वर्ड्सवर्थ ने. अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि स्पॉट टाइम थियरी इज रिलेटेड टू, स्पॉट टाइम थियरी इज रिलेटेड टू विलियम वर्ड्सवर्थ, ये कॉन्सेप्ट उन्होंने किसमें दिया हुआ है? लिरिकल बैलाड में दिया हुआ है. और लिरिकल बैलाड के प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड में. और जो प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड है वो कब आया है? 1800 में आया है. कब आया? 1800 में. So you find कि in preface to lyrical ballad he gave the concept the spot time theory, which refers that the poetry goes under four classes. कितने क्लासेस में जाती है? फोर क्लासेस में. ड्यूरिंग इट्स कंपोजिशन. कौन कौन सी क्लासेस है? पहली क्लास होता है इमोशन, दूसरा होता है इमोशन के बाद वो मेमोरी में स्टोर होता है, फिर तीसरा चरण उसका होता है रिकलेक्शन, एंड द लास्ट फेज इज क्रिएशन. The above process can happen within 42 years in 10 years. The above process can happen within 42 years in 10 years. When you talk about कि 42 years in 10 years, it means that कि this process happen within 10 years. If it means that कि जो वो process है emotion का, memory का, recollection का, creation का, often it happens within 10 years or 42 years. 42 years या 10 years में आप उसको रिकॉल करते रहते, वो चीजें स्टोर्ड रहती मेमोरी में. तो इमोशन पहला फेज है, मेमोरी दूसरा फेज है, रिकलेक्शन तीसरा फेज है और क्रिएशन चौथा फेज है. So you here find what key who gave the spot time theory? Wordsworth. And how do you find spot time theory in the poetry of William Wordsworth? You find spot time theory in the poetry of William Wordsworth, especially Tintin Abbey. If you talk about Tintin Abbey, you will come to know कि Tintin Abbey, a beautiful poem, that's what in which he talks about relationship between man and nature. You find that कि Tintin Abbey is a natural place covered with shadowy trees and thick forest where the river Wye passes. All these things you find. But except it, you also find external beauty of nature, internal beauty of nature, and philosophical beauty of nature. You also find that. And you come to know कि that place William Wordsworth visited for the first time. Which place William Wordsworth visited for the first time? William Wordsworth visited that place, means Tinton Abbey, for the first time in 1793. After a gap of 5 years, he revisited that place in 1798. So you will come to know ये जो गैप है जब उसको रिविजिट करते हैं तो वही सेम चीज होता है कि उससे जुड़ा हुआ जो इमोशन है, मेमोरी है, उसका रिकलेक्शन होता है, देन क्रिएशन भी उसका होता है. दिस थिंग्स यू फाइंड. सो दैट इज व्हाट, दैट इज द टाइम स्पॉट, सॉरी, स्पॉट टाइम थियरी. Just I want to know, have you any problem in question number 2? No, sir. No, okay, okay. Again, I would like to repeat कि question number first is very important because question number first में in every option you find answer. Again, I would like to repeat कि father of dramatic poetry Christopher Marlowe, and why Christopher Marlowe is famous. He is also famous for writing the first historical play, that was the Edward II and Marlowean concept of hero. उनका अगर आपको याद होगा डॉक्टर फास्टस था, टैम्बरलेन है, जीव ऑफ माल्टा है, उनका वर्क ये सब मैं बता रहा हूँ. अगर आपको याद होगा
हीरो एंड लिएंडर उनका पहला पोयम है। उसी पहली पोयम को लिखने की वजह से उसी को इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ ड्रामेटिक पोइट्री कहा जाता है। एंड ही यूज्ड ब्लैंक वर्ड्स, और उनके द्वारा यूज किए गए ब्लैंक वर्ड्स को जो है माइटी लाइंस कहा गया। किसके द्वारा? बेन जॉनसन के द्वारा कहा गया। किंग ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग रॉबर्ट ब्राउनिंग, ऑलरेडी यू नो कि उनका माई लास्ट डचेस है, प्रॉस्पिके है, राबी बेन एजरा है, एंड्रिया डेल साल्टो था, और एक पोयम उनका। सो यू फाइंड द सेकेंड पॉइंट, फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे फ्रांसिस बेकन। Already I told you कि Francis Bacon has been addressed as the wisest, the brightest, and the meanest of mankind. A well-known essayist of Elizabethan age who wrote formal essays. He has written 58 essays, which published in 1597, 1612, and 1625. Some of his well-known essays of studies, of princes, of revenge. These things you will come to know. Of truth, ये सब कुछ आपने पढ़ा भी है। फादर ऑफ एसे मॉन्टेन जो फ्रांस के रहे हैं, और मॉन्टेन ने कैसा ऐसे लिखा है? इनफॉर्मल लिखा है। फॉर्मल ना लिख करके उन्होंने कौन सा लिखा? इनफॉर्मल लिखा है। फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज जॉन वाइक्लिफ को, बिकॉज ही ट्रांसलेटेड द बाइबल फ्रॉम लैटिन इनटू इंग्लिश इन 1382। द फर्स्ट यूज ऑफ कैरेक्टर अरिस्टोटल नहीं रहे हैं, बल्कि कौन रहा है? आपका थियोफ्रेस्टस रहे। अरिस्टोटल क्यों फेमस है? बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट क्रिटिक ऑफ द वर्ल्ड हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी इन हिज पोएटिक्स। तो अगर कभी भी आता है कि दुनिया का पहला क्रिटिक है जिसने जो है क्या दिया हुआ है, जिसने कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी दिया, और किस किताब में? तो अरिस्टोटल गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी इन हिज वर्क पोएटिक्स, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ कैरेक्टर हैज बीन गिवन बाय थियोफ्रास्टस, अ ग्रीक ऑथर। और अरिस्टोटल ने अपनी पोएटिक्स में कैरेक्टर के लिए जो शब्द यूज किया वो कौन सा शब्द है? इथॉस है। प्लॉट के लिए उन्होंने जो शब्द यूज किया माइथॉस है। और ट्रेजिक हीरो के लिए उन्होंने कहा कि हीरो शुड नीदर बी एब्सोल्युटली गुड नॉर एब्सोल्युटली बैड, बट द मिंगलिंग ऑफ गुड एंड बैड एलिमेंट, मतलब नीदर ही शुड बी इंटायरली और कंप्लीटली सेटन और एंजिल, बट वो ह्यूमन होना चाहिए, जो अच्छाई और बुराई का मिश्रण हो, उसको उन्होंने दिया। ही आल्सो गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ tragic hero. Hymarcia, already I discussed you. Tragic flaw, the weak point of the character, which becomes the cause of his downfall. Hubris, it is a type of Hymarcia. It shows the divine, the disobeying of the divine warning. जैसे मैंने बताया था कि कंस का और श्री कृष्ण का जो एपिसोड है उसमें आप इसको पाते हैं। कैथारसिस, परगेशन, प्यूरिफिकेशन और इमोशनल वॉश। एनाग्नोरिसिस, I just told you what एनाग्नोरिसिस, reversal of the fortune. Just you find, and you also find the concept of the peripetia. These things you find. तो एनाग्नोरिसिस, पेरीपीटिया, ये सब शब्द किसके द्वारा दिए गए हैं? अरिस्टोटल के द्वारा। एंड यू आल्सो कम टू नो थ्री यूनिटीज, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन। बट सबसे ज्यादा कौन सा रहा? यूनिटी ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट रहा। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? ऑन एजुकेशन, अ वर्क ऑफ मिल्टन इन विच ही सपोर्टेड रिनेशा एजुकेशन। ऑन शेक्सपियर वॉज रिटन बाई जॉन मिल्टन। इससे क्वेश्चन इस साल आया था टीजीटी या पीजीटी में, जो कि इसकी पब्लिशिंग डेट को लेकर के आया था। परहैप्स टीजीटी में था। 1630 और 32 का मामला था इसमें, जो है कि उसका तो आज शेक्सपियर को लेकर के। Lamartine said Paradise Lost as the dream of Puritan fallen asleep over his Bible. Milton has given his views on poetry in his poem Lycidas. Lycidas 1637 में आया है। और Lycidas क्या है? Just I want to know what is Lycidas? Anyone? Pastoral elegy. Yeah, that is the pastoral elegy of William John Milton. Yeah. Now, option number E में है कि Lycidas and elegy of Milton composed on the death of Shakespeare. ये यहाँ पे बताया गया है, लेकिन शेक्सपियर की डेथ पर नहीं था, बल्कि ये किसकी मौत पर लिखा गया है? एडवर्ड किंग। एडवर्ड किंग उनके दोस्त थे, किसके? मिल्टन के। और एक्सप्लेनेशन में भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि इट वाज कंपोज्ड ऑन द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग, not Shakespeare. So this question is very important. When I talk about कि which of the following is not true, इनमें से कौन सा एक ट्रू नहीं है? On education, a work of Milton in which he supported Renaissance education. ये बात सही है कि on education उनका एक वर्क है, पैम्फलेट था, जिसमें उन्होंने Renaissance education को लेकर के बात किया था। On education, a work of Milton in which he supported Renaissance education. On Shakespeare was written by John Milton. ये भी बात सही कि on Shakespeare जो है
ये एक पोयम है जो किसके द्वारा लिखा गया है, जॉन मिल्टन के द्वारा, और 1630 ईस्वी में ये लिखा गया है, और 1632 ईस्वी में ये पब्लिश हुआ था। किसमें पब्लिश, क्या पब्लिश पहले से भी हुआ था, लेकिन इसको शामिल किया गया था फर्स्ट सेकेंड फोलियो ऑफ मिल्टन, जो नॉट मिल्टन बट विलियम शेक्सपियर का जो ड्रामा आया था, ड्रामा का सेकेंड फोलियो था, उसमें 1632 में इसको इंक्लूड किया गया था। और ये बहुत डिस्प्यूटेड क्वेश्चन था इस बार के टीजीटी का, तो आज शेक्सपियर का इसमें रहा था। लैमार्टिन एक क्रिटिक है जिन्होंने कहा था पैराडाइज लॉस्ट एज द ड्रीम ऑफ अ प्यूरिटन फॉलन आज लीप ओवर हिज बाइबल। ये बात सही है, ये बात किसका है, लैमार्टिन का है। मिल्टन हैज गिवन हिज व्यूज ऑन पोइट्री इन हिज पोयम लिसिडास। मिल्टन ने अपना जो दृष्टिकोण है, नजरिया है कविता से संबंधित, तो उन्होंने किस वर्क में दिया है, लिसिडास में दिया है। और लिसिडास किसका एग्जाम्पल है, पेस्टोरल एलजी का भी एग्जाम्पल है और मोनोडी का भी एग्जाम्पल है। लिसिडास का सब टाइटल मोनोडी है। तो 1637 मोनोडी क्या है, मोनोडी इज अ टाइप ऑफ एलिजी इन विच यू फाइंड सिंगल पर्सन अटरेंस। कल मैंने उस पर एक लेक्चर दिया था, एंड आई also uploaded that lecture on my YouTube channel, so you can just watch that, and I will send you the link there. And now this is E. Lycidas and L.G. of Milton, composed on the death of Shakespeare, not on the death of Shakespeare, but on the death of Edward King. Question number 4, which of the following is wrong? इनमें से कौन सा एक गलत? Did you come to know question number 3? Any problem? It's okay, sir. Okay. Now you find question number 4, which of the following is wrong? इनमें से कौन सा एक गलत है? The War of Roses was fought between the House of York and the House of Lancaster. जो War of Roses था, ये दो फैमिली के बीच लड़ा गया था। कौन कौन सी दो फैमिली थी? The House of York and the House of Lancaster. The 100 Years War was fought between England and France. ठीक है। In 1688 bloodless revolution took place. It is also known as glorious revolution. ये भी ठीक है। Black Death is the name given to the epidemic of plague that occurred in Chaucer's age. ये भी ठीक है। Sir Thomas More's Utopia 1516 is called a true prologue of Renaissance. The word liberty, equality and fraternity came for the first time in this book. बुक में पहली बार यहाँ पे आया, बाद में ये स्लोगन बना 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन का स्लोगन बना है। और लास्ट ऑप्शन है कि विलियम टिंडल, अ सिग्निफिकेंट प्रोज राइटर, ट्रांसलेटेड द बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट इनटू इंग्लिश। नाउ यू फाइंड कि यही ऑप्शन गलत है, और इसमें क्या है, विलियम टिंडल ट्रांसलेटेड द बाइबल नॉट ओल्ड टेस्टामेंट बट न्यू, बल्कि उन्होंने कौन सा ट्रांसलेशन किया था, न्यू टेस्टामेंट। इसका मतलब इसमें से भी काफी कुछ सही है, लेकिन जो ये शब्द बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट रखा गया है, यहाँ पे करेक्ट क्या है, न्यू टेस्टामेंट। बाकी सारे स्टेटमेंट सही है। So you will come to know William Tyndale translated the Bible, not Old Testament but new one in 1526. His translation, the New Testament, was revised in 1535. 1526 में इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया था, 1535 में इसको रिवाइज किया गया, और क्या कहा गया, कवरडेल बाइबल। क्या कहा गया, कवरडेल बाइबल। ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ द बाइबल वाज ट्रांसलेटेड बाय जॉन वाइक्लिफ। जो जॉन वाइक्लिफ ने ट्रांसलेट किया था वो ओल्ड टेस्टामेंट, और जो न्यू टेस्टामेंट ट्रांसलेट किया गया था वो विलियम टिंडल के द्वारा ट्रांसलेट किया गया था। जस्ट आई वांट टू नो कि ओल्ड टेस्टामेंट जो जॉन वाइक्लिफ ने ट्रांसलेट किया था उसका डेट क्या है। मैंने यहाँ पे इशारा भी कर दिया, 1382। डोंट फॉरगेट दिस डेट। और इसी के ट्रांसलेशन की वजह से ही तो जॉन वाइक्लिफ को फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कहा जाता है ना। तो इफ यू गो विद दिस क्वेश्चन तो एफ गलत है, लेकिन एफ में ऑप्शन ओल्ड टेस्टामेंट की जगह न्यू टेस्टामेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो ओल्ड टेस्टामेंट था उसका ट्रांसलेशन जॉन वाइक्लिफ ने किया, और एक घटना कब की है, 1382 की है। न्यू टेस्टामेंट का ट्रांसलेशन विलियम टिंडल ने किया है, ये घटना कब की है, 1526 की है। और जो न्यू टेस्टामेंट 1526 में विलियम टिंडल ने ट्रांसलेट किया था, इसको रिवाइज किया गया था। कब रिवाइज किया गया था,
1535 में रिवाइज किया गया था। और जब इसको रिवाइज किया गया तो उसके बाद इसको कवरडेल बाइबल कहा जाता है, क्योंकि कवरडेल ने इसको रिवाइज करने में हेल्प किया हुआ था। जॉन वाइक्लिफ ने 1382 में ओल्ड टेस्टामेंट को ट्रांसलेट किया था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल केम इन 1611। ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल कब आया था? 1611 ईस्वी में आया था। मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ कि जब ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल आया था तो उस समय इंग्लैंड का राजा कौन था? हु वाज द किंग? जेम्स फर्स्ट। या दैट्स गुड, गुड। ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल जब 1611 में आया था तो उस समय जो किंग थे जेम्स फर्स्ट थे, इन्हीं के नेतृत्व में ही एक ट्रांसलेशन हुआ था। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज क्रैनमर्स बाइबल इज आल्सो नोन एज ग्रेट बाइबल। और क्रैनमर के बाइबल को ग्रेट बाइबल कहा जाता है, जो 1539 ईस्वी में आया था। क्रैनमर्स बाइबल इज नोन एज ग्रेट बाइबल विच केम इन 1539। सो इसमें कई इंफॉर्मेशन है, ओल्ड टेस्टामेंट का ट्रांसलेशन, न्यू टेस्टामेंट का ट्रांसलेशन। और न्यू टेस्टामेंट जो ट्रांसलेट किया गया उसको रिवाइज किसने किया, और ग्रेट बाइबल कब आया, उसको ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल कब आया, जॉन वाइक्लिफ ने जो ट्रांसलेशन किया वो कब आया। कई डेट्स ऐसे हैं जो आपको ध्यान में रखना है। जैसे पहला डेट जो विलियम टिंडल ने जो ट्रांसलेशन किया था, वो उन्होंने किसका किया था? विलियम टिंडल ने ओल्ड टेस्टा विलियम टिंडल ट्रांसलेटेड द बाइबल नॉट ओल्ड टेस्टामेंट बल्कि न्यू टेस्टामेंट का, कब? 1526 में। उसके बाद उनके वर्क को 1535 में रिवाइज किया गया, उसको कवरडेल बाइबल कहा गया। ओल्ड टेस्टामेंट का ट्रांसलेशन किसने किया था? जॉन वाइक्लिफ ने किया था, कब? 1382 में। और इसी ट्रांसलेशन की वजह से उनको आग के हवाले कर दिया जाता है। ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल केम इन 1611। उस समय जेम्स फर्स्ट राजा थे। क्रैनमर्स का जो बाइबल था उसको ग्रेट बाइबल भी 1539। और मैं इस चीज को ऑप्शन को फिर पीछे चल रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन है था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, कौन सा रॉन्ग है? वो तो आपको समझ में आ गया। ए भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही, ए भी सही, ए बी सी डी ई सब सही है। फिर से इसमें आपको समझना क्या है। द वार ऑफ रोजेस वार फॉट बिटवीन द हाउस ऑफ यॉर्क एंड द हाउस ऑफ लंकास्टर। वार ऑफ रोजेस किसके किसके बीच हुआ था? हाउस ऑफ यॉर्क और हाउस ऑफ लंकास्टर के बीच हुआ था। 100 ईयर्स वार किसके बीच लड़ा गया था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। ब्लडलेस रिवॉल्यूशन कब हुआ था? वो आपका 1688 में हुआ था, जॉन ड्राइडेन के समय। उसको और किस नाम से जाना जाता है? ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के नाम से। ब्लैक डेथ किसके समय आया हुआ था? चौसर के समय आया हुआ था। और ब्लैक डेथ क्या था? एक प्लेग डिजीज रही है। सर थॉमस मोर का जो यूटोपिया है, इसको क्या कहा जाता है? इज कॉल्ड अ ट्रू प्रोलॉग। इसको एक ट्रू प्रोलॉग ऑफ रेनेशा कहा जाता है। द वर्ड लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी केम फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस बुक। लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी जो किताब, मतलब जो नॉट किताब बट स्लोगन, ये जो शब्द है पहली बार इसी किताब में आया हुआ है। तो दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग? Iran and Elazan are related to characters which are used in early comedy. Then you find कि हेमिंगवे हैज गिवन द थियरी ऑफ कोड हीरो। ये वाला कई बार पूछा जा चुका है यूजीसी नेट में कि कोड हीरो का कॉन्सेप्ट किसने दिया? अर्नेस्ट हेमिंगवे, जो अमेरिकन नॉवलिस्ट है और जो पीजीटी में प्रेस्क्राइब्ड है। अर्नेस्ट हेमिंगवे ने कोड हीरो का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। और ये भी बात है कि ईरान, EIRON एंड एलाजान, ये दोनों टर्म है जो अर्ली कॉमेडी में किसके लिए यूज किए जाते थे? कैरेक्टर के लिए यूज किए जाते थे। EIRON एंड एलाजन, ALAZON। हेमिंगवे हैज गिवन द थियरी ऑफ कोड हीरो, बिल्कुल सही है। मोरालिटी प्लेज वर प्रोड्यूस्ड इन 15th एंड 16th सेंचुरीज, सही है। जस्ट आई वांट टू नो कि मोरालिटी प्ले का कोई एग्जांपल जो कई बार पूछा जा चुका है। डू यू रिमेम्बर? एवरी मैन नहीं है मोरालिटी प्ले का एग्जांपल। EVERY, एवरी मैन इज एन एग्जांपल ऑफ मोरालिटी प्ले। ऑथर इज अननोन। Morality plays were produced in 15th and 16th century. Dryden was the first author appointed officially by the British sovereign। बिल्कुल सही है कि ड्राइडन पहले आथर थे जिनको ऑफिशियल पोएट का दर्जा दिया गया। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश किंग थे उन्होंने इनको अपॉइंट किया हुआ था। द सब टाइटल ऑफ लिसिडास इज सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। जो सब टाइटल है लिसिडास का वो क्या है? सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। और उसको मोनोडी का भी एग्जाम्पल कहा जाता है। द सब टाइटल ऑफ लिसिडास इज सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस, सही है। लैमार्टाइन यूज्ड द वर्ड रिनेशा फॉर द फर्स्ट टाइम। करें कि रिनेशा जो शब्द आया
ये पहली बार लैमार्टाइन ने यूज किया, ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसको जो है जूल्स मिशेल मिशेल ने यूज किया हुआ था। रिनेशा वर्ड वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय अ फ्रेंच हिस्टोरियन जूल्स मिशेल, JULES MICHLET, किसमें? हिस्ट्री दी फ्रांस में, उनकी किताब है हिस्ट्री दी फ्रांस में। सो यू फाइंड दैट व्हाट यू फाइंड दैट कि ये जो यूज किया गया है कि रिनेशा वर्ड वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय अ फ्रेंच हिस्टोरियन जूल्स मिशेल, ये यूज किया गया, हिस्ट्री दी फ्रांस में यूज किया गया। आई थिंक यू गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 5, शुड आई गो अहेड? Yes, sir. So you या ओके, सो यू फाइंड कि ईरान एंड एलाजान एक कैरेक्टर के थे जो कॉमेडी में यूज किए गए। हेमिंगवे ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया? कोड हीरो का दिया। मोरालिटी प्ले 16 सेंचुरी 15 सेंचुरी में लिखा गया। और सबसे बड़ा एग्जांपल मोरालिटी प्ले का, बड़ा का मतलब बेस्ट एग्जांपल एवरी मैन है। डाइडेंट पहले ऑफिशियल पोएट थे। सब टाइटल लिसिडास का सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस है जो पेस्टोरल एलजी भी कही जाती है और साथ ही साथ मोनोडी के भी नाम से। लैमार्टीन ने रिनेशा शब्द पहली बार नहीं यूज किया है, बल्कि किसने यूज किया? जूल्स मिशेल ने यूज किया है, हिस्टोना दी फ्रांस में यूज किया उन्होंने अपनी किताब। Now you find question number 6. The beginning of modern realistic drama took place with the writing of Cast. Who is the author of the play? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है कि जो बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न रियलिस्टिक ड्रामा है ये कास्ट से शुरू होता है और इसका हीरो कौन है? डब्ल्यू पिनरो, सॉरी रॉबर्टसन। इसके जो हीरो है रॉबर्टसन है, नॉट डब्ल्यू पिनरो बट रॉबर्टसन। तो यू विल कम टू नो कि इसमें रहे हैं। और जहां तक बात है हेनरिक इब्सन का, तो आपको पता है हेनरिक इब्सन का वर्क है अडाल्फ हाउस, जीबी शाह, आपको पता ही है कि ये सब रहे। डब्ल्यू पिनरो भी इन्हीं कैटेगरी में आते हैं। तो यू फाइंड दैट कि जो बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न रियलिस्टिक ड्रामा है ये किससे शुरू होता है? कास्ट से शुरू होता है। कास्ट के राइटर कौन है? रॉबर्टसन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इमेजिज्म, द टर्म वाज क्वाइन बाय एजरा पाउंड। जो इमेजिज्म शब्द है इसको एजरा पाउंड ने क्वाइन किया था। एंड इमिटेटेड बाय टी ह्यूम, इट रिप्रेजेंटेड अ रिएक्शन अगेंस्ट द वीकेस्ट सॉर्ट ऑफ रोमांटिक पोइट्री, सही है। ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव, द टर्म क्वाइन बाय एन अमेरिकन पेंटर, इस टर्म को अमेरिकन पेंटर ने क्वाइन किया था जिसका नाम था पोएट वाशिंगटन एल्स्टन। उसका क्या नाम था? वाशिंगटन एल्स्टन। एंड इंट्रोड्यूस्ड बाय टीएस एलियट इन हिज एसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। और इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? टीएस एलियट ने किया था। किसमें? हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ये सारे क्वेश्चंस इट हैज बीन आस्क्ड इन ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इट्स हाईली सिग्निफिकेंट। यू विल कम टू इमेजिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया हुआ? एजरा पाउंड ने। और इसको किसने इनिशिएट किया? टी ह्यूम ने। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो टर्म है इसको किसने कॉइन किया है? वाशिंगटन ने। और टीएस एलियट का उस समय रहा है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। यू फाइंड हियर एंड यू फाइंड की व्हाट? यू फाइंड की 1919 में आया हुआ है। प्राइमरी एपिक या फॉक एपिक क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट दिया। एंड यू फाइंड की प्राइमरी एपिक या फॉक एपिक इट इज आल्सो कॉल्ड ट्रेडिशनल एपिक। जो प्राइमरी एपिक है या फॉक एपिक है इसको किसके नाम से जाना जाता है? ट्रेडिशनल एपिक के नाम से जाना जाता है। एंड होमर्स व्हाट? होमर्स इलियड एंड ओडिसी ये किसका एग्जांपल है? प्राइमरी एपिक का एग्जांपल है। लेट मी नो, इज इट द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एपिक होमर्स इलियड? इज इट द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एपिक? या Yes, sir. I think या एंड व्हाट द एग्जांपल ऑफ लिटरेरी एपिक? If Homer's Iliad and Odyssey is an example of primary epic, then which work is an example of literary epic? Which work? पैराडाइज लॉस्ट। दुनिया का सबसे पहला, दुनिया का सबसे पहला वर्जिल्स एनीड से एनीड। So many times I discussed with you these points. Discussed with you already कई बार हुआ, ऐसा नहीं कि पहली बार मैं इसे बताता हूँ। But I don't think कि आप लोग कौन सा च्यवनप्राश यूज करते हैं कि भूल जाते हैं।
या सो यू फाइंड कि है उसमें हमें ध्यान में रखना है कि जब टॉक अबाउट प्राइमरी एपिक या व्हेन आई टॉक अबाउट यू कैन से एपिक आर ट्रेडिशनल एपिक, तो दुनिया में सबसे पहला नाम जो आता है वो किसका आता है? होमर की इलियड एंड ओडिसी का, ठीक है। बट व्हेन आई टॉक अबाउट लिटरेरी, तो लिटरेरी एपिक का दूसरा नाम क्या है? व्हाट द अदर नेम ऑफ लिटरेरी एपिक? लिटरेरी एपिक को सेकेंडरी लिटरेरी एपिक को सेकेंडरी एपिक नहीं कहा जाता, या सेकेंडरी एपिक। तो जब आप लिटरेरी एपिक को सेकेंड से पहला जो है लिटरेरी एपिक का क्रेडिट किसको जाता है? वर्जिल के एनीड को जाता है, एंड वर्जिल्स एनीड बिकम द रोल मॉडल पैराडाइज लॉस्ट। जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट का दैट को उन्होंने अपना वो किया था। और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज की, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, कैन यू एक्सप्लेन इट? जो आपका प्राइमरी एपिक या फॉक एपिक है या आपका ट्रेडिशनल एपिक है, वो उसका स्टोरीज और कैरेक्टर्स पहले से ही रहता है, एग्जिस्ट करता है, और वो कैसे होता है? ओरल फॉर्म में होता है, बाद में उसको रिटेन शेप दिया जाता है। लेटर ऑन इट गेट्स व्हाट? लेटर ऑन इट गेट्स द रिटेन शेप। और जो आपका लिटरेरी एपिक होता है वो इंडिविजुअल क्राफ्टमैनशिप है, दैट इज द इंडिविजुअल क्राफ्टमैनशिप। मैंने इससे रिलेटेड कल अभी मैंने एक लेक्चर दिया था, वो भी मैं आपको भेजूंगा। कम से कम एक बार एपिक का देख लीजिएगा कि व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चंस, कि दिस आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, और कितना जल्दी हम लोग मिस कर जाते हैं, कितना जल्दी मिस कर जाते हैं। So you have to go with these points कि प्राइमरी एपिक, सेकेंडरी एपिक, लिटरेरी एपिक का क्या है, कैसे है। You have to keep it in your mind, don't forget it. So you find what? You find कि जो प्राइमरी एपिक है या फॉक एपिक है, या शुरू से ही ओरल फॉर्म में रहता है, उसका कैरेक्टर्स, इवेंट, सब कुछ जो है पहले से एग्जिस्ट करता है, बाद में उसको रिटेन शेप दिया जाता है। ऐसा नहीं कि जो होमर का इलियड और ओडिसी है उसकी कहानी होमर की देन है, नो, नॉट एट ऑल। होमर ने केवल उसको रिटेन शेप दिया हुआ है। लेकिन जो सेकेंडरी एपिक होता है, इट्स द इन्वेंशन ऑफ व्हाट? इज द इन्वेंशन और द क्रिएटिविटी ऑफ पोएट्स माइंड, या पोएट के माइंड का क्रिएटिविटी होता है। So secondary epic or literary epic, it was composed by individual poetic craftsmen in deliberate imitation of the traditional form as Aeneid and Paradise Lost. Aeneid का ट्रांसलेशन किसने किया था? वर्जिल के Aeneid का who translated? इंग्लिश में? ये तो लैटिन में आई थी ना। एक बार दोबारा टीजीटी के एग्जामिनेशन में आप लोग बैठिएगा। ये नहीं पता हो रहा कि वर्जिल के Aeneid का ट्रांसलेशन किया था? सर आई थिंक वर्जिल और होमर दो में एक ने किया था। नहीं, वर्जिल का तो ऑलरेडी वो वर्क ही है, वो उसको लैटिन में लिखा था, बट इट वाज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाय हेनरी होवर्ड इन 1540। सबसे पहली बार ब्लैंक वर्स का यूज दुनिया में किसी वर्क में हुआ है तो इसी में तो हुआ है ना। में या एनीड में हुआ है, एनीड में ही पहली बार ब्लैंक वर्स का यूज दुनिया में किया गया, लेकिन किस रूप में किया गया? व्हेन इट वाज ट्रांसलेटेड फ्रॉम लैटिन इनटू इंग्लिश, नॉट बाय वर्जिल, बट इट्स ए ट्रांसलेटेड फॉर्म। और ट्रांसलेटेड फॉर्म किसका क्रेडिट जाता है? हेनरी होवर्ड अर्ल ऑफ सरे को जाता है ना। तो ब्लैंक वर्स को सबसे पहले इंट्रोड्यूस जिसने किया हुआ है इंग्लिश में, उसका इंट्रोड्यूस फ्री वर्स जो है विलियम फ्री वर्स वाल्ट व्हिटमैन को क्रेडिट है, हीरोइक सर को है। ये सब इंग्लिश की बात चल रही है, तो वी हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट्स। ओके सर। सेकेंडरी एपिक जो आपका है वो लिटरेरी एपिक है। इट वाज कंपोज्ड बाय इंडिविजुअल पोएटिक क्राफ्टमैनशिप इन डेलिब्रेट इमिटेशन ऑफ द ट्रेडिशनल फॉर्म एज एनीड
और एनीड किसका क्रिएशन है? वर्जिल का, लैटिन में आई थी, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हिंदी होवर्ड अल्लाफ सरे ने 1540 में किया, बुक सेकेंड एंड बुक 4। और वो भी आपका क्या था, उसमें उन्होंने ब्लैंक वर्स में इसको लिखा। पैराडाइज लॉस्ट जो है जॉन मिल्टन का एपिक है, और मिल्टन ने किसको फॉलो किया? मिल्टन फॉलोड वर्जिल के एनीड को फॉलो किया हुआ है। Then you find the last word is pantomime. And what is pantomime? Pantomime is an acting on the stage with speech. No, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, without speech. It's acting on the stage without. वह भाषा होती है जो बगैर बोले हुए बताई जाती है, जिसको कहा जाता है जेस्चर एंड पॉस्चर, कि हमें लोगों के जेस्चर और पॉस्चर को भी समझ। और पॉस्चर क्या होता है? बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज से क्या है? बगैर बोले हुए जाते हैं या होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? पैंटोमाइम लिटरेरी टर्म में कहा जाता है। इट इज नोन एज पैंटोमाइम। ऑलवेज कीप इन योर परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज विदाउट स्पीच, बगैर स्पीच, अपॉन द स्पीच, दैट इज द पैंटोमाइम। Yeah. Now you find what? You find the next question, and what is that? That is you come to know. ये क्लियर हो गया? इसमें कोई दिक्कत? तो पैंटोमाइम क्या है? एक्टिंग ऑन द स्टेज विदाउट स्पीच, यूजिंग ओनली बॉडीली मूवमेंट एंड एग्जैजरेटेड फेशियल एक्सप्रेशन। नाउ यू फाइंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग? इसमें पहले से बता दें, कुछ रॉन्ग नहीं है, सब सही है। जैसे थ्रीनोडी एंड मोनोडी क्या है? थ्रीनोडी और मोनोडी, इट इज अ टाइप ऑफ डर्ज या डर्ज। डर्ज क्या है? एलजी होता है। तो एलजी जो होता है उसी एलजी का टाइप है। थ्रीनोडी भी है, मोनोडी भी है, और डर्ज भी होता है, विच रिप्रेजेंट द अटरेंस ऑफ अ सिंगल पर्सन। खास करके थ्रीनोडी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मोनोडी में सिंगल पर्सन अटरेंस होता है। जब एक आदमी किसी की मौत पर दुख व्यक्त करता है, एक ही आदमी बोलता है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको मोनोडी कहा जाता है। मोनो का मतलब ही सिंगल होता है। और जो थ्रीनोडी है, दैट इज इक्विवेलेंट टू डर्ज आपका। ट्रेजिक फ्ला क्या है? एन एरर ऑफ जजमेंट, पहले से ये पता है कि हाँ ट्रेजिक फ्ला होता है। मेलोड्रामा क्या है? फुल ऑफ एक्साइटिंग इवेंट्स इन विच कैरेक्टर्स, इसको भी आपको पता है। नॉवेलीड क्या है? वर्क ऑफ फिक्शन है। डॉगरेल क्या है? अ टर्म अप्लाइड टू रफ एंड हैवी फुटेड जर्की वर्सिफिकेशन। मास्क भी हमें पता है कि इसमें कॉमिक 16 और 17 सेंचुरी में आया था, खासकर कोर्ट एंटरटेनमेंट के लिए, जिसमें म्यूजिक का यूज होता था, सॉन्ग का, डांस का। मास्क जॉन मिल्टन का याद होगा ना, आर्केड्स, और आर्केड्स के अलावा कामस उनका मास्क रहा है। बीट राइटर्स ये क्या थे? एन इनफॉर्मल एसोसिएशन ऑफ राइटर्स। ये बीट राइटर्स एक ग्रुप था जिसमें जो है 1960 के आसपास आया था, जो सोशल जो एटीट्यूड था उसके खिलाफ वो लोग बात करते थे। तो यू कैन जस्ट गो विद दीज वर्ड्स या व्हाट हैज बीन रिटन। और ये बीट राइटर्स क्या करते थे? जॉज या ड्रम का यूज करते थे, इसकी वजह से उनको बीट राइटर्स कहा जाता था। सो यू फाइंड व्हाट की विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग? नथिंग इज रॉन्ग, सब कुछ सही है जो भी दिया गया डिफिनेशन। ट्रेजिक फ्ला भी सही है, मेलोड्रामा भी सही है, ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हु यूज द टर्म एपोलियोनियन एंड डायोनीसियन? That is you will come to know it was used by Nietzsche ने यूज किया था। It was used by Nietzsche to show the opposition between reason and instinct. रीजन और इंस्टिंक्ट के बीच में डिफरेंस के लिए, कल्चर और प्रिमिटिव नेचर के बीच में डिफरेंस के लिए नित्शे ने जो वर्ड यूज किया था वो क्या था? अपोलोनियन एंड डायोनीसियन। You find question number 10, that is a theatrical performance or piece of writing which tries to make something ridiculous by presenting it in a humorous way, that is a burlesque। दिया भी है, which of the following is incorrect? इसमें सब करेक्ट है। एल्यूजन का मतलब क्या है? पासिंग रेफरेंस है। अवांति गार्डे का मतलब है कि द एडवांस ग्रुप इन लिटरेरी आर्ट्स हुज वर्क्स आर कैरेक्टराइज्ड चीफली बाय अनऑर्थोडॉक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। सेज का मतलब होता है सेजरा पास, जो कि हीरोइक कपलेट में यूज किया गया है। एफोरिज्म का मतलब है शॉर्ट एंड पिची इंस्ट्रक्टिव सेइंग।
एपिग्राम, अ शॉर्ट पिची स्टेटमेंट विथ इनडायरेक्ट सेइंग. सो दीज थिंग्स यू फाइंड कि ये सब चीजें रहेंगी. So now I have done what? Now I have done question number 9, 10, 11. If you have any problem, you can just tell me or say something.